वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम रविंद्र कुमार। ठीक है, जीआईसी टेक्निकल में आपका स्वागत है। देखो, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कंटेंट इज सोम। ओके, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी स्ट्रेस, नेक्स्ट स्ट्रेन, थर्ड वन इज टू स्ट्रेन, टू स्ट्रेस, टू स्ट्रेन। okay, and tension test on mild steel. So this topic we have covered in last lecture. So we will give the overview of the some important contents like stress. What is the stress? Is represented by sigma, is internal force by area. It is internal force of resistance by area. And what is strain? Strain is change in length by original length. Okay, change in length by original length. Strain. What is true stress? What is true stress? True stress is, it is represented by sigma t is equal to instantaneous force by actual area. Okay, instantaneous force by actual area. We can say sigma is equal to sigma naught 1 plus E. Okay, we have studied in previous class what is two strain. It represented by Et epsilon t change in length by actual length. Okay, it is change by length by actual length. And next one we have studied next one tensile test on ductile material. Okay, we have draw mild steel curve in during tensile test, the curve between stress and strain. There various points are located in the curve. One point is 1 A and B, C, D, E and F. The point A, limit of proportionality, limit of proportionality. Okay, point B is elastic point, point B is elastic point, point C upper yield point, point D is lower yield point, and point E
ultimate point and point F is fracture point. Fracture point. Okay. There are various type of point in tensile test of the ductile material. Ductile material means mild steel. We can take a ductile material mild steel. Okay. So these are the point are located on the mild steel curve, the mild steel stress strain curve. Okay. The next term, this point are we are covered in the previous class. This point are covered in previous class. Okay. Now the next point is one of the most important point, resilience. Okay. What is resilience? Energy stored within elastic point. Which type of energy? Strain energy. Strain energy stored within elastic point, which is called resilience. Okay. So what is strain energy? Strain energy is half of the sigma y into stress into strain. Okay. As elastic point, strain energy is half into stress into strain. We can write strain is equal to stress directly proportional to strain, sigma is equal to, then strain is equal to sigma by A. Okay. Then we got a new formula, half sigma y square by E, which is represented by U. Strain energy is sigma y square by 2E. Sigma y, what is sigma y? Yield stress what is capital E? Modulus of elasticity. Okay. This strain energy stored within the elastic limit is called resilience. Next, one of the most important proof resilience.
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी stored within elastic point. ठीक है, एनर्जी स्टोर विद इन द इलास्टिक पॉइंट इज कॉल्ड रेजिलियंस. व्हेन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, देयर डिफरेंस. The strain energy stored at the elastic point is called resilience. If the proof, what is the proof resilience? Proof resilience is maximum strain energy stored within the elastic limit. Okay, maximum energy store. So how to calculate maximum energy? In this question, we take a maximum stress. We take maximum stress is called maximum shear strain. Maximum shear strain energy, maximum strain energy. So maximum strain energy stored within the elastic point is called proof resistance. तो बहुत से क्वेश्चन में क्या आता है, प्रूफ रेजिलेंस और रेजिलेंस में दोनों का डिफरेंस नहीं आता. आप ऑप्शन देना तीनों रहेगा, आपको मैच करना होगा कि कौन सा प्रूफ रेजिलेंस है, कौन सा रेजिलेंस है और कौन सा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है. नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored within elastic point. Okay, maximum strain energy per unit volume, maximum strain energy per unit volume stored within elastic limit of a body is called मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस. ठीक है, आपसे क्वेश्चन है ये घुमा फिरा के ही पूछा जाता है. इसमें पूछा जाता है कि प्रूफ रेजिलेंस, रेजिलेंस और इसमें आपको तीन ऑप्शन ये दे देंगे. ठीक है, अब इसमें से मैच करने होते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या कहिए. आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए. पर यूनिट वॉल्यूम मॉडुलस पूछ रहा है. ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन प्रूफ रेजिलेंस पूछ रहा है. अगर सिर्फ सिंपल बोल दिया है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक में तो वो रेजिलेंस हो जाते हैं. बहुत से कन्फ्यूजन यही रहता है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रूफ स्ट्रेस. जेई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है प्रूफ स्ट्रेस. ठीक है, बेसिकली स्ट्रेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी मटेरियल में. किसी मटेरियल में अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक डेफिनेट क्वांटिटी यूज करते हैं. ठीक है, क्वांटिटी आता है उसके क्या कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट ऑफ वैल्यू आती है. पर प्रूफ स्ट्रेस अगर मैं बात करूँ, कॉपर जैसे हुआ, कॉपर एलिमेंट, ठीक है, एल्युमिनियम एंड सिल्वर. ठीक है, इन सब चीज़ों में अगर हम इनकी टेंसाइल टेस्ट करें, इन सब मटेरियल का अगर टेंसाइल टेस्ट करूँ मैं तो इनकी कर्व जो होगी लीनियर नहीं होगी. क्या होगी, लीनियर कर्व नहीं मिलेगा. अगर हम इसमें टेंसाइल टेस्ट करते और सब मटेरियल में तो हमें क्या करता था, एट इलास्टिक पॉइंट लगभग क्या होता था, लीनियर होता था. ठीक है, कर्व तो लीनियर होता था. उसके बाद क्या होता था, इस तरह से कराते हैं. पर इन केस प्रूफ अगर कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि विच टाइप प्रूफ स्ट्रेस आर अप्लाइड इन. चार मटेरियल देंगे, माइल्ड स्टील, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर, तो आप कॉपर टिक करोगे. ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछ देते हैं कि किस टाइप का मटेरियल में हम प्रूफ स्ट्रेस का यूज करते हैं. तो मटेरियल को बताना चाहिए, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर. इन सब मटेरियल में डायरेक्टली क्या हमें लीनियर कर्व नहीं मिलते हैं. क्या नहीं मिलते हैं, ठीक है. दिस टाइप ऑफ मटेरियल, दिस टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, नो लीनियर कर्व
obtain in stress and strain diagram. ओके जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लीनियर कर्व नहीं होगा तो उसका यील्ड स्ट्रेस हमें क्या पता नहीं होगा, ठीक है। सो यील्ड स्ट्रेस मीन्स सिग्मा वाई। यील्ड स्ट्रेस इज नॉट proper define yield stress is not proper define। ओके मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस मटेरियल की बात कर रहा हूँ, कॉपर एंड सिल्वर की। उसमें कोई लीनियर कर्व नहीं होते हैं, कोई यील्ड स्ट्रेस क्या परफेक्टली हम क्या करते हैं उसे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर कोई डिफाइन नहीं होता है। तो इसको करने के लिए कैसे क्या करते हैं, इसको करने के लिए अगर मैं डायग्राम पे देखूं, ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें, ठीक है। हम स्ट्रेन कर को तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें स्ट्रेन से एक ऑफसेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ऑफसेट लेना पड़ेगा जो पैरेलल टू कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो पैरेलल टू कर्व होगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, वो पॉइंट करेंगे एज एज्यूम करेंगे यील्ड पॉइंट। क्या करेंगे? एज एज्यूम करेंगे यील्ड पॉइंट। सपोज ओके मैंने स्ट्रेन से एक पैरेलल लाइन लिया जो इंटरसेक्ट करा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, ओके। और ये जो डिस्टेंस है, दिख नहीं रहा है, ओके कितना लिया? 0.2%, सॉरी 0.2%। ठीक है, 0.2% स्ट्रेन का मैंने क्या किया, वहां से एक लाइन ड्रॉ की, क्या, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू कर्व, देन इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं जाके, तो वहीं और क्या हो जाएगा आपका, अब ये कर्व हो जाएगा आपका प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, प्रूफ स्ट्रेस क्या हो गया, ऑफसेट लाइन ड्रॉ, ऑफसेट लाइन ड्रॉ 0.2% of strain which intersect stress strain diagram then we assume a yield point, then we assume a yield point which called proof
स्ट्रेस। ओके, विच कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस। अगर मैं स्ट्रेन से 0.2% पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर, और उस पॉइंट पर स्ट्रेस मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वही हमारा क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा जेईई वगैरह में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये। प्रूफ स्ट्रेस डिफाइन, ठीक है, 0.2% ऑफसेट इन द स्ट्रेन 0.2% ऑफ स्ट्रेन ड्रा पैरेलल टू द, ठीक है, स्ट्रेन लाइन intersect the stress strain diagram which called proof stress. Okay, next, next slide, not next, टफनेस। बस सिंपल से ये देख लेते हैं, तो ये फ्रैक्चर पॉइंट, क्या ये फ्रैक्चर पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट एनर्जी एब्जॉर्ब up to the fracture point is called toughness. ओके, हमारी कोई भी टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए बिफोर फ्रैक्चर, वो उसकी क्या होती है, टफनेस कहलाता है। इसको हम क्या करते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं मेजर की बात करूं तो मेजर आपका यूज करता है चारपी टेस्ट, आइजो टेस्ट, ओके, या यू कह लो एरिया अंडर द फ्रैक्चर पॉइंट, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं, दिस इज कॉल्ड टफनेस। थैंक यू। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।